Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Oswal Pumps Q2 FY26 earnings conference call hosted by Nuvama Institutional Equities. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touch-tone phone. I now hand the conference over to Mr. Achal Lohade from Nuvama Institutional Equities. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Rio. Good afternoon, everyone. On behalf of Nuvama Institutional Equities, we welcome you all for the earnings call of Oswal Pumps Limited. The management is represented by Mr. Vivek Gupta, Chairman and Managing Director, Mr. Shivam Gupta, Whole-Time Director, Mr. Subodh Kumar, Chief Financial Officer, and Mr. Sanjeev Sancheti, IR Advisor, Atal's Advisor, NLP. Without further delay, I hand over the call to Mr. Sancheti for opening remarks, followed by Mr. Vivek Gupta, and then we'll take the Q&A. Over to you, Sanjeev. Thank you, Achal. Good afternoon to all the participants on the call. It is my pleasure to welcome you to the Oswal Pumps Limited Q2 FY26 earnings call. Joining me today are the members of the senior management team of the Oswal Pumps, Mr. Vivek Gupta, Chairman and Managing Director, Mr. Shivam Gupta, Whole-Time Director, and Mr. Subodh Kumar, CFO. Before we begin, I would like to draw your attention to the safe harbor statement included in the earnings presentation. This has also been uploaded on the BSE and NSE website for your reference. With that, I will now hand over the call to Mr. Vivek Gupta for his opening remarks. Over to you, Vivek ji. Thank you, Sanjeev ji, and very good afternoon, everyone. So, on behalf of Oswal Pumps Limited, I warmly welcome all of you to our quarter 2 FY26 earnings call. We are pleased to report operating revenue of around rupees 540 crores, reflecting a strong 73.9% year-on-year growth and 5% growth over the sequential quarter. This sustained momentum was primarily driven by the continued execution of our PM KUSUM and Magal Tela orders. Our EBITDA margin for the quarter stood at 24.7%, and our operating EBITDA margin stood at 23.7%, reflecting a quarter-on-quarter decline of 3.68%. The primary reason was the L1 price in PM KUSUM and Magal Tela tenders, which fell by an average of 7.5%, impacting the margin of over 80% of our core revenue. In addition, certain one-time factors contributed to margin pressure, including approximately rupees 40 crore of module sales of significantly lower margins compared to complete pumping systems, and a one-time expense of 2.5 crore related to increasing the authorized capital of our subsidiary. These factors together caused an estimated 1.8% decline in operating EBITDA margins, which we expect to recover in quarter 3 FY26. Overall, the above-mentioned elements resulted in an operating EBITDA margin compression of over 6.5%. However, through proactive value engineering initiatives and operational excellence, we are able to mitigate the impact of 2.85%. These actions reinforce our ability to navigate pricing pressures and protect profitability, while positioning the business for a stronger margin profile going forward. While the rate revision contributes to put pressure on margins, we are progressing toward the completion of several key backward integration and value engineering projects, which will positively impact our operating profitability by another 1% from quarter 4 FY26. Operationally, we continue to deepen our leadership in the solar pumping ecosystem. As of October 31st, 2025, we have successfully executed over 80,000 solar pumping systems under various government programs, further solidifying our position as one of the largest integrated solar pump providers in the country. Looking ahead, we have a strong order book exceeding 18,800 pumps, consisting of direct PM KUSUM, Magal Tela, indirect PM KUSUM, and export orders, and a near-term pipeline of over 30,000 pumps
across major states including Maharashtra, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh. These orders, along with the robust near-term pipeline, position us well to achieve our financial year 26 targets. Additionally, we anticipate the launch of PM Kusum 2 before the end of this fiscal. Given our integrated business model and strong execution capabilities, we are extremely well placed as well as confident to leverage the opportunities that will arise from the upcoming program. Separately, we proposed shifting the solar module expansion project to a land parcel located adjacent to our existing plant. This proposed change is driven by several practical and strategic considerations as outlined below. The proposed land parcel is situated immediately adjacent to the existing facility of Oswal Solar Structure Private Limited. This proximity offers significant logistical benefits, including seamless coordination, reduced transportation time and cost, and overall operational efficiencies. The proposed land is a vacant industrial parcel leased under an agreement for a period of 15 years, commencing June 25-24, with the provision of extension upon mutual agreement. Given the adjacent to the existing facility, the current skilled workforce can be leveraged more effectively for the expanded operations. Moreover, existing R&D, laboratory, and administrative infrastructure can be shared, resulting in meaningful cost savings. The proposed large land parcel offers a substantially larger area of 28,000 square meters compared to 13,983 square meter area available at the earlier location. This enhanced space allows for optimized plant layout and design efficiency, ample storage of raw materials and finished goods, scope for future scalability and expansion. The proposed land is already classified as industrial land since it is adjacent to the existing OSSPL facility. The project will be treated as an extension of the current unit. As a result, only amendments or updates to the existing regulatory approvals and licenses will be required. No new approvals are necessary, thereby minimizing administrative processes and associated costs. Existing Oswal Solar Structure Private Limited facility has an independent electricity feeder that can be shared with the new unit, resulting in cost optimization. Members may also note that no funds have been deployed on the initially proposed project land, although the land located has changed. The intended utilization of funds remains exactly as disclosed in the prospectus. The expansion is being executed in phases, the first of which has already commenced, and this change will not impact the overall project timeline. This proposed relocation is expected to significantly enhance operational efficiency, reduce cost, and deliver superior long-term value. All other elements of the object clause remain unchanged. Overall, this will be a value accretive to all the stakeholders and for which we will seek shareholders' approval. With that, I will now hand it over to our CFO, Mr. Subodh Kumar, who will walk you through the financials in more detail. Over to Subodh. Thank you, Vivek sir, and good afternoon, everyone. I will now take a few minutes to walk you through the financial highlights for the quarter. As mentioned earlier, I hope you have had a chance to review our earnings presentation and press release. So let's begin with the top line. So operating income for quarter 2, financial year 26, stood at 540 crores, which represent a 73.9% growth year-on-year basis and a 5% increase quarter-on-quarter basis. Operating EBITDA for the quarter stood at 128 crores, reflecting a 26.5% year-on-year growth and 9.1% quarter-on-quarter degrowth. This translates into an EBITDA margin of 23.7%, while EBITDA margin for H1 financial year 26 remained healthy at 25.5%. Profit after tax was 98 crores, up 48.3% year-on-year and 3% Q-on-Q basis, with a PAT margin of 17.8%. H1 financial year 26 PAT margin stood at 18.1%. Now, on to the return ratios and balance sheet metrics.
Despite the capital infusions, our returns ratio remains strong. Return on net worth stood at 40%. Return on capital employed was 45.9%. Our receivable days stood at 138 days as of September 2025, compared to 126 days at the end of June 2025. This increase was primarily driven by two reasons. First and the foremost reason was under PM KUSUM and the Magal Tyal payment terms. Under this program, disbursements are linked to the RMS data, which require pumps to operate for at least 90 days before payment are released. So due to extended monsoon across the country, pumps used by farmer during the quarter was lower than expected. This delayed the generation of RMS data, consequently lengthening the receivable cycle. With the monsoon season now over, we expect the situation to improve in the current quarter. And the second reason was delay in disbursement of bank loan to the Magal Tyal. The disbursement process experienced temporary delays. However, it is expected to be completed within the next 10 to 15 days, which will help improve the receivable cycle going forward. So we reported a net debt positions of 38 crores as on quarter end. Coming to IPO fund utilization, as you are aware, the primary objectives were to fund capacity expansion and reduce debt. Out of the total fresh issue proceeds of 842 crores, we have already deployed approximately 478 crores towards these goals. Looking ahead, backed by our strong order backlog and supportive industrial tailwinds, we are confident in the sustaining our growth momentum. For financial year 26, we are targeting revenue growth in the range of 50 to 60% with a medium-term goal of maintaining a CAGR of 30 to 35%. The one-time margin impact witnessed during the quarter is not expected to reoccur in the remainder of the financial year, and further cost saving for at least 100 basis points we are expecting by Q4 financial year 26. We believe we should end Q3 with an operating EBITDA margin in the range of 25.5% to 26% and Q4 with an operating EBITDA margin in the range of 26.25% to 26.75%. We expect PAT margins to be in the range of 17.5% to 19%. We remain committed to disciplined execution, financial prudence, performance, and sustainable growth. So with that, now we open the floor for questions. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask questions may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking questions. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. To ask questions, please press star and 1. First question is from Preet Nagarsheth from Wealth Finvisors. Please go ahead. Yes, hi. So the question I have is regarding KUSUM. I'm reading some reports where there is some indication that KUSUM itself might get extended because they are running behind their targets for both B and C components. Now, my question is this, that in the scenario they get extended into next year and KUSUM 2 gets further delayed, what becomes of our growth outlook for the subsequent years? Okay. आपने सब नाम मिस्टर प्रीत है सर मेरा नाम. या प्रीत जी, देखिए, सबसे पहले तो कुसुम 2 जो गवर्नमेंट से एमएनआरई से हमें गाइडलाइन आई है, जो डिस्कशन हुई है कि इन द मंथ ऑफ जैन इज एक्सपेक्टेड टू कम, और कुसुम 2 में हम लोग सब लोग पूरे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बुलिश है, और इवन जो पूरी डिपार्टमेंट है एमएनआरई है, ही इज वेरी कीन टू इंट्रोड्यूस. इसलिए उस पीएम कुसुम 2 में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको थोड़ा सा जज करके थोड़ा आराम से वो लॉन्च कर रहे हैं, नंबर 1. लेकिन अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पीएम कुसुम 2 की स्कीम किसी वजह से थोड़ी सी डिले होती है, तो भी आज की डेट में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं, महाराष्ट्र में मागल टेला में स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर्स और अपने टेंडर्स को कंटिन्यू किया हुआ है. तो वहां पर पीएम कुसुम 2 की वजह से वो ऑर्डर्स की डिले नहीं होने वाले हैं, ना ही हो रहे हैं. प्रेजेंटली ऑल स्टेट्स आर डूइंग, लाइक एमपी भी उसी तरह पे काम कर रहा है, कर्नाटका भी उसी सीक्वेंस में काम कर रहा है, क्योंकि अप टू 31 मार्च 25 तक, इस कैलेंडर ईयर तक,
पीएम कुसुम 1 की टोटल स्कीम गवर्नमेंट ऑब्सोलेट बंद कर देगी, इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेगी, ये क्लियर है। लेकिन इस बीच में जितनी भी स्टेट एजेंसीज है वो पीएम कुसुम 2 की वेट नहीं कर रही हैं, वो अपनी स्कीम्स एज पर अंडरस्टैंडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वो अपनी स्कीम को कंटिन्यू कर रही हैं सब्जेक्ट टू प्राइसेस। मतलब जो पीएम कुसुम 1 के जो प्राइसेस हैं उनसे अगर प्राइसेस स्टेट गवर्नमेंट से इक्वल या माइनस रहते हैं तो किसी तरह के स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई इशू नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई भी, मुझे नहीं लगता है किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी आदमी को कोई भी कंसर्न नहीं है रिगार्डिंग दिस वॉल्यूम, रिगार्डिंग दिस ग्रोथ। तो सर क्वेश्चन ये होता है कि इन द सिनेरियो कि कुसुम 1 थोड़ा लंबा चलता है और स्टेट स्कीम्स आ जाती है, तो आप जो, चलो ये साल तो 50-60% आपका ऑलरेडी पेंसिल्ड है बिकॉज ऑफ योर पाइपलाइन, बट नेक्स्ट ईयर के लिए आप जो 35% CAGR सोच रहे हैं वो आप शायद उसको क्या 25% पे रखोगे? मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि इम्पैक्ट क्या आ सकता है। मैं मानता हूँ ये नहीं होगा, बट फिर भी देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए ये स्कीम ना अपने आप में एक कंपाउंडिंग स्कीम है। कंपाउंडिंग से मतलब किसी वजह से अगर गवर्नमेंट की पीएम कुसुम 2 अगर डिले होती है तो ये पूरी की पूरी सोलर सेल को इम्पैक्ट करेगी, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत बड़े PLI स्कीम्स दी हुई है और सोलर सेल को ALCM के अंदर भी लाने की कोशिश हो रही है ताकि इंडियन सेल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। सो आज की डेट में सबसे बड़ा कंज्यूमर जो DCR सेल का है वो पीएम कुसुम है, राइट। सो पीएम कुसुम किसी भी वजह से डिले का मतलब है कि पूरी सोलर सेल इंडस्ट्री को एक अनसर्टेनिटी में डालना। तो नंबर 1 पॉइंट, वहां पर गवर्नमेंट की ऐसी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि जितना भी डीपली हम लोगों से सेंट्रल मिनिस्ट्री ने पूरी इंडस्ट्री से मीटिंग के दौरान डिस्कस किया है तो दे आर वेरी बुलिश और वो बहुत बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ आ रहे हैं। और उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो ये चाहते हैं कि जितनी भी परेशानियां या जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन में आई हैं वो फ्यूचर में ना आए, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहे हैं उसको लॉन्च करने के लिए, ताकि और ज्यादा एग्रेसिव वे में पीएम कुसुम 2 में ये जो सोलर पंप की लॉन्च इंस्टॉलेशन है बहुत एग्रेसिव वे में हो। दिस इज द ओनली रीजन। तो वॉल्यूम ग्रोथ को और CAGR को लेके मुझे तो लगता नहीं कि किसी भी जगह कोई गैप दिख रहा है या कोई कंसर्न दिख रहा है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट, हर स्टेट बहुत ज्यादा बुलिश है और डेफिनेटली वी आर वेरी मच बुलिश। तो यहाँ पर कोई कंसर्न मुझे दिख नहीं रहा अगले आने वाले सालों में भी। राइट, थैंक यू सर। दूसरा क्वेश्चन था सर ऑन द EBITDA मार्जिन। अभी आपका जो लास्ट कॉल था वहां पे ऐसा पूछा गया था कि भाई कौन सी चीज आ रही है जो शायद आपको कुछ स्ट्रेस डाले या टेंशन में डाले, और आपका आंसर अच्छा था कि आपने बहुत सोचा पर कुछ लग नहीं रहा था। नाउ ये क्वार्टर में सडनली देयर इज वन टाइम EBITDA डिप। चलो ठीक है, फुल ईयर हाफ ईयर फिर भी 25% आया, तो अगले जो हाफ ईयर बचता है उसमें आपका क्या गाइडेंस रहता है ये EBITDA मार्जिन के लिए? ओके, देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी मैं ऐसे इसको डिवाइड करता हूँ क्वार्टर 3 से, तो क्वार्टर 3 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 25.5% के आसपास का EBITDA मार्जिन, उन्हें 25.5 से 26% का EBITDA मार्जिन हम लोअर साइड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जो हम अचीव कर लेंगे। एंड क्वार्टर 4 में अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 27% के आसपास का जो EBITDA मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अराउंड 26.75 मैक्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, देखिए अगर आप देखेंगे 1.8% का EBITDA मार्जिन हमारा वन टाइम कॉस्ट इनकर हुई है जो कि आगे फ्यूचर में नहीं होने वाली है। सो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। सेकंड, हमारी कंपनी ने बहुत वैल्यू इंजीनियरिंग पे काम किया है जिसका इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे तो मागल तेला का जो टेंडर है वो टेंडर पिछले पीएम कुसुम 1 के कंपैरेटिवली बहुत लोअर गए हैं, उसका इम्पैक्ट 7.5% का टोटल टेंडर के प्राइसेस में आया है। लेकिन कंपनी चूंकि ऑलरेडी ये मन बना के बैठी थी कि ये ऑलरेडी डाउन जाएगा, तो हम लोग बहुत पहले से वैल्यू इंजीनियरिंग पे काम कर रहे थे और किया भी है, जिसका इम्पैक्ट हम बहुत उसको मिनिमाइज कर पाए हैं। सेम वे में अगर किसी वजह से हमारा आगे जो टेंडर्स आ रहे हैं तो हमारी कंपनी ये मान के चल रही है अगर किसी वजह से उसमें 2%, 3%, 4% तक का प्राइस अगर डाउन होता है टेंडर का तो उसको रिकवर कैसे किया जाए। मोर ओवर हमारे पास जो प्रपोजल हमारी टीम ने दी है, प्रोडक्शन टीम ने, R&D टीम ने, सबने दी है, वो दी है कि अगर 3, 3.5, 4% तक का भी अगर प्राइस डाउन होता है तो कंपनी पे मैक्सिमम इम्पैक्ट 0.5% से 1% तक आएगा। तो
हम बहुत, और वो भी डाउन होगा नहीं होगा, अगेन ये बड़ा बिग क्वेश्चन है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर ऐसा डाउन होता है तो वो मिनिमाइज कितना कर पाते हैं। तो हम लोग हर एक फ्रंट पे जी बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि जितनी फैसिलिटीज हमारे पास बैकवर्ड है उसको और अच्छी तरह से हम लोग इक्विप कर रहे हैं, और R&D तो डेफिनेटली हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। या थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर, एंड विशिंग यू गाइस ऑल द बेस्ट। थैंक यू ब्रिजी, थैंक यू वेरी मच। Thank you. The next question is from Raman KV from Sequent Investments. Please go ahead. Hello, sir. Can you hear me? या हाँ जी रमन जी, मैं सुन रहा हूँ। Yes. सर, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ये क्वार्टर में हम लोग ने कितने पंप्स एग्जीक्यूट किए और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में एंड पिछले साल सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में? कैन आई हैव द फिगर्स? ओके, आई नीड 1 मिनट। इस क्वार्टर में टोटल नंबर ऑफ पंप हम लोग किए हैं 48। इस क्वार्टर में हमने करीब 48,000 पंप्स डिलीवरी किए हैं क्वार्टर 2 में। क्वार्टर 1 में था 56,000। टोटल 80,000 है ना? नहीं, मैं पूरा टोटल नॉट सोलर एंड नॉन सोलर मिला के। नहीं ये आप ये रमन जी, आप सिर्फ सोलर पंप की बात कर रहे हैं या टोटल पंप की बात कर रहे हैं? सोलर प्लस नॉर्मल। ओके, सो क्वार्टर 2 में हमने टोटल पंप सप्लाई किए 48,000 एंड क्वार्टर 1 में हमने करीब 51,000 टोटल पंप सप्लाई किए। इसमें सोलर और नॉन सोलर दोनों वेरायटी आ गई। और पिछले साल सेम क्वार्टर also. पिछले साल Q1 में Q2 FY25। सर अभी मेरे पास इमीडिएट वो डाटा नहीं है, लेकिन मैं अच्छा। निकाल दूंगा। मुझे And, लगता है तकरीबन 30-35% कम होगा इसमें, 40 अराउंड 35 to 40% क्वांटम लास्ट क्वार्टर 1 और लास्ट क्वार्टर 2 में कम होगा इससे अप्रोक्सीमेटली। पर हमारे एग्जैक्ट फिगर आपको दे देंगे, पर अप्रोक्सीमेटली ये डिफरेंस आएगा। एंड सर, ये 48,000 पंप्स में से सोलर कितने थे? सोलर कितना थे इसमें? 48 में सोलर थे 23,000। सोलर थे इसमें 23,000 पंप्स। Okay, understand. Hello, yeah. Yeah, understood, sir. And sir, my second question is, आपका जो सोलर मॉड्यूल का कैपेक्स है वो कब तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा और when will the impact be on the EBITDA margins? या देखिए, EBITDA मार्जिन पे तो डेफिनेटली उसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 600 मेगावाट की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। सो जो हमें आगे फ्यूचर में पंप्स के ऑर्डर ज्यादा मिलने वाले हैं, जो हमारे प्लान्स है, बड़े प्लान्स है, तो डेफिनेटली हमने सोलर मॉड्यूल की उस कैपेसिटी को सप्लाई चेन और प्रॉफिटेबिलिटी, सेम प्रॉफिटेबिलिटी को इंटैक्ट करने के लिए किया हुआ है। तो जो टाइमलाइन हम लोगों ने सोलर प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन में रखी हुई है वो विद इन टाइमलाइन चल रहा है। सो इस फाइनेंशियल ईयर में हम करीब 0.75 750 मेगावाट का हमारा प्लांट ऑपरेशन में आ जाएगा इसी फाइनेंशियल ईयर में। एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के आई थिंक फर्स्ट H1 तक हमारा 750 मेगावाट वो भी ऑपरेशन में आ जाएगा। सो हम जो हमारी नीड पंप्स की जो एक्सपेक्टेशन है, क्वांटम की जो बिजनेस ग्रोथ हम देख रहे हैं, सो साइमल्टेनियसली जो ये प्रोजेक्ट लगेंगे वो हमारी नीड को पूरा करते जाएंगे। समझ गया सर। ये जो 23,000 सोलर पंप्स आपने इंस्टॉल किया है उसमें कितना मेगावाट ऑफ सोलर मॉड्यूल यूज किया है? तकरीबन 23,000 में तकरीबन मान लीजिए 100 मेगावाट अप्रोक्सीमेट 100 मेगावाट मान लीजिए। अच्छा, सो अराउंड 20,000 सोलर पंप्स में यूजुअली अराउंड 100 मेगावाट ऑफ सोलर मॉड्यूल, ये यूनिट इकोनॉमिक्स है। हाँ, अगर जनरल एक बात करें तो 5 किलोवाट में हम एक एवरेज मिला लेते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली एवरेज, मतलब 5.5 आ जाए, 5.8 आ जाए, बट प्रैक्टिकली अगर देखें तो 5 किलोवाट की एवरेज एक चलते हैं। तो 20,000 मतलब 23,000 मतलब 100 मेगावाट 110 मेगावाट के आसपास का ये क्वांटम आता है। ओके, अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर। राइट, थैंक यू रमन जी। Thank you. Next question is from Gaurav Agarwal from VA Capital. Please go ahead. हेलो गौरव जी, गुड इवनिंग। थोड़े क्वेश्चन थे सर, आई हैड अ फ्यू क्वेश्चन। Firstly, the price of a 7.5 HP pump is 3,30,000. राइट। एंड ये जो PM कुसुम स्कीम है उसमें पूरे 7.5 HP पंप के लगते हैं या फिर लेस
कम के भी लग सकते हैं, ज्यादा के भी लग सकते हैं। ओके, देखिए गौरव जी, इसमें क्या है कि हर स्टेट में हर किसान की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। तो मैं ऐसे बात करता हूँ, अगर ये क्वांटिटी हरियाणा से आती है या पंजाब से आती है तो यहाँ पर मोरलेस 7.5 HP और 10 HP के ज्यादा पंप की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन यही रिक्वायरमेंट अगर महाराष्ट्र से आती है तो वहां पर 3 HP और 5 HP की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। लेकिन अगर यही रिक्वायरमेंट राजस्थान से आती है तो वहां पर 5 HP और 7.5 की रिक्वायरमेंट रहती है। सो डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चरिस्ट जो है, फार्मर है, उसकी क्या नीड है। पर मोरलेस हर स्टेट में अलग अलग रेटिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। सो ब्रॉडली अगर हम, इसलिए हमने जब रमन जी को बताया कि हमारा 5 किलोवाट की एवरेज इसलिए है कि कहीं पर 7.5 किलोवाट भी चलता है, वहाँ कहीं पर 3 किलोवाट भी, कहीं पर 10 किलोवाट भी, तो वो एवरेज आउट करते हैं तो ब्रॉडली 5 किलोवाट, 5.5 किलोवाट, 4.5 किलोवाट ये आ जाता है। तो 5 HP का पंप अप्रोक्सीमेटली क्या सकता रहता है? 5 HP का मैं आपको अप्रोक्सीमेट, वैसे तो स्टेट टू स्टेट थोड़ा बहुत वेरी भी करता है हल्का फुल्का, लेकिन मोरलेस मैं मानता हूँ 2.5 लाख के आसपास का इसकी कॉस्ट आती है। 2,65,000, 2,60,000 के आसपास की कॉस्ट आती है। So now in the second quarter, you have done 23,000 solar pumps and 25,000 other pumps. उसमें 25,000 जो other pumps है उसका average cost क्या रहेगा? Average cost? उसका देखिए, उस पे जो 25,000 है उसमें ओनली पंप्स हैं, जबकि हम 23,000 जो पंप्स हम सेल कर रहे हैं ये कंप्लीट कॉम्बो है। मतलब इसके अंदर हम पंप, मोटर, कंट्रोलर, सोलर मॉड्यूल, सोलर स्ट्रक्चर, सोलर BOS, केबल एंड एसेसरीज एंड सर्विसेज, ये सब कॉम्बो का हम सप्लाई कर रहे हैं। बट अगर हम बात करते हैं बाकी पंप्स की जो एक्सपोर्ट मार्केट में है या हमारे पैन इंडिया नेटवर्क में है, तो वहां पर वैरायटी ऑफ पंप्स बहुत ज्यादा है। जैसे डोमेस्टिक पंप की वैल्यू अगर चलते हैं तो तकरीबन 2,500-3 हजार रुपए की एक पंप की वैल्यू है। लेकिन वही एग्रीकल्चर पंप की वैल्यू करते हैं तो करीब 20,000 से 40,000 रुपए तक की वेरी करती है। यही एक्सपोर्ट मार्केट में बात करते हैं तो करीब 10,000 से 20,000 के बीच में वेरी करती है। सो डिपेंड करता है कि कौन से रीजन में क्या डिमांड आ रही है। पर अप्रोक्सीमेटली मे बी 8-10 हजार रुपए की एवरेज आएगी। ये मान के चले 10,000 की एवरेज आएगी, ये मान के चलेंगे। या 8-10 हजार की एवरेज रहेगी ना? राइट। आपने गाइडेंस दिया था 2,25,000 pumps this year you will be able to execute, जिसमें 50% will be solar. अराउंड हमने सोलर का दिया था, अराउंड 65 to 75,000 पंप्स विल इंस्टॉल दिस ईयर। तो अराउंड 75,000 का हमने दिया था एंड वी आर क्वाइट वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो वहां पर हमें उस नंबर्स में कोई गैप भी नहीं दिख रहा है, कोई कंसर्न नहीं, एंड वी आर फुली इक्विप्ड। तो वहां पर कोई गैप नहीं है। तो फर्स्ट हाफ में यू हैव डन 23,000 पंप्स एंड नहीं, नॉट फर्स्ट हाफ, नहीं हमने फर्स्ट हाफ में नहीं किया, हमने क्वार्टर 2 में 23,000 किया है। हाँ, मतलब टोटल 23,000 प्लस अगर आप 15,000 40,000 पंप्स तो आपने H1 में कर दिया है। सो यू आर एक्सपेक्टिंग द H2 टू बी ओनली विद 35 to 40,000 पंप्स? देखिए, हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने जैसा पूछा कि हमने लास्ट टाइम गाइडेंस क्या दी थी, तो गाइडेंस हमने 65 to 75,000 की दी थी। तो वहां पर हमारा कोई भी गैप नहीं है। इनफैक्ट हम नंबर्स तो डेफिनेटली कोई भी कंपनी ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली नंबर ज्यादा की तरफ देखना चाहिए, और वही देख रहे हैं हम। तो अगर मेरे हिसाब से कैलकुलेशन इफ यू डू another 50,000 pumps in the second half, I think you should be able to cross your revenue guidance of 60%. तो देखिए, ये बड़ा अर्ली रहेगा, पर मैं ये जरूर कहूँगा जो आपने कहा है तो डेफिनेटली आपकी जो बेस्ट विशेज है वो हमारे ये पहुंच गई है। तो हम उम्मीद करेंगे जो आपके मुंह से निकले हुए जो वर्ड्स है वो बहुत अच्छी तरीके से पूरे हों। हाँ, श्योर, मैं भी वही चाहता हूँ। डेफिनेटली सर, ये और हम एक बात जरूर कहेंगे कि हम बहुत अच्छी तरह से इक्विप्ड हैं मार्केट में किसी भी तरह का क्वांटम लेने के लिए, और बहुत हमारी टीम बहुत एग्रेसिवली और बहुत एंथू के साथ लगी हुई है। तो ये करंटली आपका ऑर्डर बुक आई थिंक 18,000 पंप्स का है ना? यस, 18,800 पंप्स अभी हमारे पास है। एंड वी आर जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हमें विजिबिलिटी आ रही है अराउंड 30,000 पंप्स की, बहुत क्लियर विजिबिलिटी आ रही है, तो वो भी है। ओके, एंड दूसरे कंपनी आई थिंक शक्ति पंप्स हैड मेंशन्ड इन द कॉन कॉल दैट द प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल्स हैव गॉन अप बिकॉज़ ऑफ देयर एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तो वो ट्रू है या आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है या क्या? नहीं, डेफिनेटली देखिए, रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं
और टेंडर्स के प्राइसेस भी घटे हैं। लेकिन गौरव जी, जैसे हमने बताया, हमारी टीम ने बहुत काम किया है, बहुत वैल्यू इंजीनियरिंग पे काम किया है और अभी भी इनफैक्ट काम कर रहे हैं। तो वो सब फीस सब लेके हमारा ये जो अभी आपके सामने ईबिटा मार्जिन आया है, ये प्रैक्टिकली आया है, जिसमें 1.8% इम्पैक्ट वन टाइम का है। मतलब ये हम रिकवर करने की पोजीशन में है Q3 तक। तो मुझे नहीं लगता कि जो प्राइसेस को लेके जो इम्पैक्ट आना था अभी तक, वो तो आ ही चुका है। अगर फर्दर कोई टेंडर्स के प्राइस और डाउन जाते हैं वो अलग बात है, या आज के बाद कोई रॉ मटेरियल के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ते हैं, तो वो बड़ा एक मतलब एक इसके बारे में कुछ भी कहना आज के दिन बहुत नहीं है। पर बहुत ज्यादा क्लियर विजिबिलिटी ऐसे आ नहीं रही है कि आने वाले टाइम में इमीडिएट प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल बहुत बढ़ने वाले हैं। जो इंक्रीज आना था काफी हद तक आ भी चुका है। Can I intervene, Sanjeev here? I think one thing we have to understand that on the sell side, I think the price are not expected to go down, and I think we're already seeing some softening on sell prices. But that apart, I think by DNA, the company is very backward integration oriented and very frugal. So on every quarter to quarter, they work on value engineering to reduce the cost. And I think that's the DNA why we are like 3 to 4% ahead in margins from the competition in the market. So that, I think, is very important for us to understand. Okay, last question, sir. The complete capacity for the next year will be 5 lakh pumps. So how much are we targeting to utilize the capacity next year? देखिए, जैसा हमने प्रोस्पेक्टस में आईपीओ फंड के बारे में यूटिलाइजेशन में, वो कंपनी बहुत एग्रेसिवली उस पर काम कर रही है और वी आर क्वाइट वेरी मच कॉन्फिडेंट कि अगले साल आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर तक, अगले साल के FY26 में या मैक्सिमम सेकंड क्वार्टर तक हम अपनी कैपेसिटीज को अचीव कर लेंगे। जो 5 लाख की है, मे भी थोड़ा सा ज्यादा अचीव करेंगे कैपेसिटी को। और चूंकि मार्च तक भी हमारी कैपेसिटीज बहुत अच्छी हो जाएंगी, तो जो क्वांटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY27 में, तो वहां पर कैपेसिटी को लेके हमें कोई गैप नहीं दिख रहा है। और उसी अकॉर्डिंगली जहां से हमें इंफॉर्मेशन आ रही है कि इस रेंज की रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो हम पहले उसी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए पहले प्लान कर रहे हैं। तो वो कोई इशू नहीं, वो प्रॉपर प्लान में चल रहा है सर। Okay, sir. Thank you very much. Thank you, Gaurav ji. Thank you. Thank you. The next question is from Surendra, who's an individual investor. Please go ahead. गुड आफ्टरनून जी। और पहले तो आपने जो गाइडेंस दिया था उससे थोड़ा बेटर रिजल्ट दिया है, तो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू सुरेंद्र जी। ये है कि आपका एक कोई नियरेस्ट कंपेटिटर है जो अभी रिसेंटली पब्लिक हुए हैं और वो 100% से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। अब आपकी तो एग्जीक्यूशन कैपेसिटी काफी अच्छी है, आपकी वैल्यू इंजीनियरिंग भी है, तो क्या आप भी ज्यादा फास्ट ग्रो कर सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा? देखिए सुरेंद्र जी, डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छे ढंग से ग्रो करेंगे, लेकिन एक चीज जो हम लोग बहुत कॉन्शियस हैं वो है अपने ब्रांड वैल्यू को लेके। और प्लस हम लोग की जो स्ट्रेटेजी है कि हम लोग पूरे इंडिया लेवल पे ग्रो करें। हम मतलब अपने आप को हर स्टेट्स में अपनी प्रेजेंस लेके आए, वहां पर टीम एग्जीक्यूट करें। अगर मान लीजिए हम किसी एक स्टेट को लेके ज्यादा फोकस करते हैं या वहां पर ग्रोथ करते हैं, तो वो थोड़ा सा हमें हमारी इंटरनल टीम को कंफर्ट नहीं आता है। सो आज के दिन किसी एक या दो स्टेट्स में ज्यादा काम है, बट वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक और हमें विजिबिलिटी भी बहुत क्लियर है कि बहुत लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में डिफरेंट स्टेट्स में आने वाली है। जैसे ही मल्टीपल स्टेट्स में जो रिक्वायरमेंट आएगी, तो वहां पर आप सुरेंद्र जी देखेंगे कि ओसवाल सबसे ज्यादा वहां पर ग्रो करने वाला है। क्योंकि आज हमारी प्रेजेंस लद्दाख में भी है, हमारी प्रेजेंस गोवा में भी है, हमारी प्रेजेंस असम में भी है, मेघालय में भी है, सिक्किम में भी है। अगर हम कर्नाटका की बात करें वहां भी है, हिमाचल की बात करें, हरियाणा बात करें, उत्तराखंड बात करें, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो हम थोड़ी क्वांटिटी हो ज्यादा क्वांटिटी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह हम पहुंच पाए, ताकि वहां का ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हमें पहले से आइडिया हो, हमारी टीम हैबिचुएटेड हो और धीरे धीरे टीम वहां पर हम बिल्डअप कर पाए, वहां की एजुकेशन, वहां के ट्रेनिंग वो सब कर पाए। ये रीजन है। ठीक है, तो आप मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में यू बिकम द बिगेस्ट प्लेयर, सो इट्स हाईली अप्रिशिएटेड। मेरा दूसरा सवाल ये था कि इसमें एंट्री बैरियर कितना है? क्योंकि एक कंसर्न जरूर ये होगा कि कोई भी अगर इंडस्ट्री बहुत अट्रैक्टिव हो तो बहुत सारे प्लेयर्स उसमें नए नए प्लेयर्स आते जाते हैं,
और फिर वो वही होता है कि टेंडर के रेट्स कम होते जाते हैं बिकॉज देयर आर टू मेनी पीपल। तो मतलब आपको क्या लगता है इसमें वो और नए प्लेयर्स आने का है क्या? मतलब एंट्री बैरियर काफी ज्यादा है कि काफी बिल्कुल कम है? देखिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सुरेंद्र जी। डेफिनेटली अगर मैं बात करूं कि जो सेटअप हम लोगों का है, अगर इस सेटअप के हिसाब से बात करूं तो डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी बैरियर है, मतलब इजिली नहीं आ सकते। लेकिन अगर मैं दूसरे एंगल से बात करूं तो इस स्कीम में एज ए ईपीसी प्लेयर जो सिर्फ वो प्रोडक्शन भी नहीं करते हैं, उनके पास टीम भी नहीं है, वो सब हर चीज आउटसोर्स करते हैं, वो सिर्फ ईपीसी का काम करते हैं, तो वहां पर डेफिनेटली हर टेंडर में नंबर ऑफ ईपीसी प्लेयर पुराने टेंडर के कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यही रीजन है, अगर आप देखेंगे तो पहले वाले टेंडर से जो ये टेंडर आया था करीबन ओवरऑल 10% से 11% के प्राइसेस को डाउन किया, जिसमें हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे, और जो प्राइसेस को इम्पैक्ट आया भी है उसका। और डेफिनेटली अगर नेक्स्ट टेंडर्स आते हैं तो ऐसा मान के चलते हैं, हम चल रहे हैं कि जब नंबर ऑफ ईपीसी प्लेयर्स आएंगे तो वो लोग इनिशियली बहुत डेस्परेट होते हैं, स्मॉल स्केल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उनको छोटी क्वांटिटी में भी दे आर वेरी, उनको लगता है दे आर कंफर्टेबल, तो वो प्राइसेस को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करते हैं। बट हम लोग जो जिस हिसाब से बैकवर्ड में काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से कर रहे हैं, तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस और वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट स्टेट का जो बिजनेस है वो ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं कर पाएगा, ज्यादा नहीं कर पाएगा। बट डेफिनेटली अगर प्राइस कंपटीशन आएगा तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो होगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुरेंद्र जी। Thank you. The next question is from Mahek Talati from Agility Advisors. Please go ahead. Yeah, hi sir. Thank you for the opportunity. Hi. I'm audible? या महेश जी बोल रहे हैं? महक, Yes, sir. हेलो सर, मैंने आपका नाम पूरी तरह सुना नहीं, आप बताएंगे प्लीज? Yeah, hi sir. Am I audible? या आप ऑडिबल हैं? आपका नाम बताएंगे सर, मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया। Mahek Talati. महेंक, Mahek. ओके सर, महेक जी। या सर, तो मुझे ये समझना था कि जब हम बोल रहे कि प्राइस ड्रॉप आ रहा है टेंडर में, बट अभी हम जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उसमें तो फिक्स्ड प्राइस होगा ना, जो पहले टेंडर्स जीते थे। ये प्राइसिंग मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, एक्सप्लेन करेंगे? ओके सर, देखिए क्या था, जब ये पीएम कुसुम 1 आया तो पीएम कुसुम 1 का टेंडर जब हुआ तो उस पूरे टेंडर में एक ही प्राइसेस थे अक्रॉस इंडिया, मतलब क्लस्टर वाइज। तो वहां पर पूरे टेंडर को 4 या 5 क्लस्टर्स पे डिवाइड किया था, तो क्लस्टर वाइज रेट में थोड़ा बहुत फर्क होता था ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन पीएम कुसुम में हर स्टेट्स को एक क्वांटम एलोकेट किया गया था। उस क्वांटम के बाद वो ऑटोमेटिकली अगर उस स्टेट ने वो क्वांटिटी पूरी कर दी है, सप्लाई कर दी है, तो जो क्वांटिटी दूसरी स्टेट को दिया गया तो उस स्टेट को उस क्वांटिटी में से पीएम कुसुम में डाइवर्ट नहीं हो पाया। तब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, हर मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लोकलाइज टेंडर को कॉल किया। जैसे मागलटेला महाराष्ट्र का टेंडर है, उन्होंने अपना लोकलाइज टेंडर बनाया, जिसमें कंडीशनल सेंट्रल गवर्नमेंट की ये थी कि जो प्राइसेस पीएम कुसुम 1 का आया अगर उससे एक्सीड करेगा तो जो सब्सिडी 30% की सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करता है, हम मैक्सिमम उतना ही शेयर करेंगे जो पुराने टेंडर के हिसाब से। बट जब ये टेंडर फ्लोट हुआ स्टेट गवर्नमेंट से, तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ ईपीसी प्लेयर जो रीजनल प्लेयर थे वो भी पार्टिसिपेट किए और भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो डेस्पिट में उन लोगों ने प्राइस को डाउन किया। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के टेंडर चल रहे हैं जो मैं आपसे, और उन्हीं टेंडर्स में हम लोगों ने सप्लाई किए मागलटेला में। Okay. So, sir, we get orders from Magartayal or we get orders from Maharashtra state on Kusum. So there are two order patterns, right? In the for example, in Maharashtra, either PM Kusum or Magartayal, right? देखिए, वैसे तो ब्रॉडली क्या है कि मागलटेला की जो स्कीम है वो स्टेट की स्कीम है और स्टेट ही इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, प्लान कर रहा है। लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखेंगे, क्योंकि 30% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो पीएम कुसुम में दे रही है, तो मागलटेला में भी 30% सब्सिडी दे रही है, तो ब्रॉडली ये भी स्कीम अंडर पीएम कुसुम की आती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट पीएम कुसुम 1 के टेंडर में ये नहीं थी, ये एडिशनल टेंडर देखी हुई है, लेकिन अंडर द नॉर्म्स, अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। यस महेश जी।
Hello? We seem to have lost the line from Mr. Mehak. We'll move to the next question. The next question is from Janak from Wealth Finvisor. Please go ahead. Okay. Sir, congratulations on good set of numbers. मेरे थोड़े क्वेश्चंस थे। जो आप बोल रहे हैं कि 2 लाख पंप से जो 5 लाख पंप जाने वाले हैं, वो कौन से ईयर में एग्जैक्टली होगा? सेकेंडली, वी आर अ डेट फ्री कंपनी, तो ये कंपनी का आपका डेट का क्या होगा इन द नेक्स्ट 2 years? व्हाट विल बी द डेट इक्विटी रेशियो? कि अगर हम इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं तो शायद थोड़ा डेट भी लेना पड़े मे बी। थर्ड क्वेश्चन मेरा था, यू कैन गो अहेड। ओके, देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि हमारी 2 लाख पंप की अभी कैपेसिटी है। सो हमने जैसे बताया कि हम H1 27 तक ये कैपेसिटी 5 लाख तक की अचीव कर लेंगे, नंबर 1 पॉइंट। और ये कैपेसिटी इसलिए अचीव की है कि ताकि जो विजिबिलिटी हमें FY 27, 28, 9 में आ रही है, हम अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी की वजह से वो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। सो एज पर हमारी जो गाइडेंस है, अगर हम FY 27 की बात करें तो तकरीबन 1,10,000 पंप की हमने अपनी विजिबिलिटी दिखाई है सोलर पंप में इंस्टॉलेशन की। अप्रोक्सीमेटली यही है ना? राइट। और सेकंड, अगर हम डेट की बात करते हैं तो आज कंपनी डेट फ्री है, लेकिन उसी के तौर पे हमने अपनी गाइडेंस दिखाई है कि जो कंपनी के पास कैश जनरेट होने वाला है, उस कैश जनरेशन से ऑटोमेटिकली हमारा वो पैसा जो हमारी कैपेसिटीज और सेल इंक्रीज हो रही है, वो हमारा वहां पर एमोटाइज हो रहा है। हमें एक्स्ट्रा किसी तरह की बोरोइंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। वो सारा पूरा हमने हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में कैलकुलेट है, तो वहां पर मुझे नहीं लगता हमारा कोई गैप आ रहा है। स्टिल अभी तक भी कोई गैप नहीं आ रहा है। ओके सर, एक और चीज जाननी थी, हम ज्यादातर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे डिपेंडेंट है, तो आर वी ऑल्सो ट्राइंग कि हम लोग ज्यादातर जो पेनिट्रेशन है जनरल मार्केट में भी करें? सर, अभी हम लोग ने अपना फोकस उस साइड पे भी बहुत एग्रेसिवली करना शुरू कर दिया है, और कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में भी एक सीनियर लेवल पे हायरिंग कर रही है। सीनियर लेवल पे हायरिंग करने के बाद अपने बहुत प्लान बना रही है। हमारी इसी बारे में काफी चर्चा चल रही है, और डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क है, एक्सपोर्ट मार्केट है, या और अदर गवर्नमेंट नेटवर्क, अदर देन गवर्नमेंट नेटवर्क है, उसके अंदर काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आप FY 27 में देखेंगे। ओके सर, एक और चीज पूछनी थी जो लास्ट है, जो आपका सोलर मॉड्यूल है जो एडजेसेंट लैंड कॉम्प्लेक्स में है, तो उसमें कैसा बेनिफिट होगा कंपनी को? एंड ये जो लैंड पार्सल ऑलरेडी परचेज हो गया है या रेंट पे है, कैसे वो है? देखिए, ये जो ऑलरेडी हमारा सोलर मॉड्यूल का प्लांट है, वो प्रमोटर की लैंड है। प्रमोटर ने लैंड को लीज पे दिया हुआ है कंपनी को, उस पर सोलर स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को, राइट। और ऑलरेडी ये ऑलरेडी लैंड है, तो ये इसमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जो अभी भी हम नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वो भी लैंड उस एग्जिस्टिंग लैंड के एडजेसेंट में है। तो उसमें क्या है कि हमारी कैपेसिटीज वहां पे जो नहीं आ रही है, उसके साथ ताकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हमारा सिस्टम, और चूंकि हमारा पेरेंट प्लांट के बहुत नजदीक है वो हमारा सोलर मॉड्यूल, तो हमारा ये भी बेनिफिट है। तो वहां पर ये पॉइंट है। ओके सर, ऐसा मान सकते हैं कि टर्नओवर फॉर द फुल ईयर करीबन 2200 करोड़ जैसा हो सकता है फॉर FY 25-26? डेफिनेटली सर, देखिए, यही हमने अपना व्यू पॉइंट लिया हुआ है कि हमने पहली अर्निंग कॉल में भी ये विजिबिलिटी दी थी कि 50 से 60% के करीब हम लोग इस साल ग्रोथ देख पा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक के अगर मैं व्यू पॉइंट में देखता हूँ, अचीवमेंट को देखता हूँ, तो उस चीज को लेके कोई गैप या कोई कंसर्न मुझे अभी नवंबर हम लास्ट में बैठे हैं तो कोई कंसर्न भी नहीं आ रहा है। Okay, sir. Thank you so much, and all the best for the remaining quarters. Yeah, thank you, Janak ji. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. The next question is from Aman Goval, who's an individual investor. Please go ahead. Sir, good afternoon, and धन्यवाद for very good set of number. For most of my questions are answered. अब बड़े धैर्य से सबके जवाब दे रहे हैं, तो इसमें काफी चीजें क्लियर हो गई। शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. The next question is from Puneet Mittal from Ebisu Investment Advisors. Please go ahead. Yeah.
हेलो पुनीत जी। हेलो जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इफ यू कैन गिव सम आइडिया कि कुसुम 2 में जो आपकी अभी तक चर्चा हुई है गवर्नमेंट के साथ, तो कुसुम 2 और कुसुम 1 में क्या बड़ा डिफरेंस और चेंज आने वाला है? ओके, देखिए पुनीत जी, कुसुम 1 अगर हम देखें तो करीब 7 से 8 साल पहले कुसुम 1 लॉन्च हुई थी और उसके अंदर उस समय काफी स्टडी करके, इंडिया लेवल पे स्टडी करके इनिशियली बहुत अच्छा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने बनाया था और वो बहुत, पर अनफॉर्चुनेटली इनिशियली वो बहुत स्लो वे में चला और लास्ट में आके अगर हम FY24 देखते हैं, 25 देखते हैं या 26 देखते हैं, यहाँ पर आके थोड़ी स्पीड अप होना शुरू हुआ है। उस समय गवर्नमेंट को बहुत कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि ये स्कीम इतनी अच्छी तरह से इंडस्ट्री परफॉर्म कर पाएगी जो लास्ट के 2 या 3 साल में परफॉर्म किया इंडस्ट्री ने। सो अब जो हमारी सेंट्रल मिनिस्टर से मीटिंग हुई है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ने वो सब बग्स पे डिस्कस किया है कि आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं फील्ड में। जैसे हम लोगों ने रिसीवेबल साइकिल को लेके डिस्कस किया कि आपका जो RMS का डाटा है वो आप डेज को रिड्यूस कर दीजिए, ताकि वो हमारी सजेशन हमने उनको दी है। सेकंड, जो पैसा हमारा 150-200 दिन के लिए रिटेन 10% रहता है, उसके लिए हमने उनको प्रपोज किया कि हम आपको बैंक गारंटी या सिक्योरिटी बॉन्ड दे देते हैं ताकि हमारा कैश इन्वॉल्व ना हो। प्लस इसके अलावा जो प्रैक्टिकली इंस्टॉलेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब इंडस्ट्री ने मिलकर अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और जो हमारे मिनिस्टर हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत पेशेंसली बात को सुन रहे हैं और उसको रेक्टिफाई करने की कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी उन्होंने हर मीटिंग में एक बात बोली है कि हम PM कुसुम 2 को बहुत बड़ा और बहुत बड़े ढंग से देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि आप एटलीस्ट इंडस्ट्री 1 मिलियन पंप हर साल इंस्टॉल करो मिनिमम। अगर इंडस्ट्री ने 1 मिलियन पंप एक साल में इंस्टॉल कर दिए तो हो सकता है हम कुसुम 2-3 में और एग्रेसिवली जाए। तो ये डिस्कशन को अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तो इस पूरी डिस्कशन में हमें लगता है कि हम लोगों से बहुत ज्यादा एग्रेसिव गवर्नमेंट चल रही है और बहुत ज्यादा उनके मन में है कि इसको किस तरह से इसको बहुत हाईली सक्सेसफुल बनाया जाए। तो इसके अंदर जितने भी बग्स है या जितने भी वेंडर्स की प्रॉब्लम्स है वो बहुत अच्छी तरीके से उसको अटेंड कर रही है। यस सुनीत जी। थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी आपने बताया कि आपके DNA में जो कॉस्ट सेविंग, फ्रूगल वगैरह फ्रूगैलिटी है, इसके कारण आपके मार्जिन कंपटीशन से बेटर है। बट अगर मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बिकॉज यू आर एन इंडस्ट्री वेटरन एंड लीडर एंड नॉट टू अंडरस्टैंड कि कंपटीशन क्या कर रही है, बट अगर हम ग्रॉस मार्जिन लेवल पे देखें तो एक है EPC प्लेयर जो आपके जितना मार्जिन कर रहा है, दूसरा है इंटीग्रेटेड प्लेयर जो आपसे बहुत कम मार्जिन कर रहा है, और ग्रॉस लेवल पे बोल रहा हूँ। तो क्योंकि ये इंडस्ट्री काफी स्टैंडर्डाइज है, रॉ मटेरियल सब स्टैंडर्डाइज है, तो उतना मार्जिन का डिफरेंस ग्रॉस लेवल पे कैसे आ सकता है? अगर आप इस बारे में कुछ समझाएं तो इट विल बी वेरी यूजफुल। देखिए अगर आप हमारे पूरे ओसवाल पंप्स लिमिटेड को पूरा आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि ओसवाल पंप्स लिमिटेड इंडिया में एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑलमोस्ट 100% फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। मतलब हम लोग पंप्स अपना इन हाउस बनाते हैं, मोटर इन हाउस बनाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के कंट्रोलर इन हाउस बनाते हैं, फिर सोलर मॉड्यूल इन हाउस बनाते हैं, फिर हमारी एसोसिएट कंपनी में हम लोग सोलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, BOS बनाते हैं। अपार्ट ऑफ दिस पंप्स के अंदर लगने वाले सारे पार्ट्स, मोटर के अंदर लगने वाले सारे पार्ट्स, कंट्रोलर में लगने वाले सारे पार्ट्स लाइक फाउंड्रीज हो गया, प्लास्टिक मोल्डिंग हो गया, रबर कास्टिंग्स होगी, रबर मोल्डिंग हो गया, स्टेनलेस स्टील कास्टिंग होगी, SS पाइप हो गया, केबल इंडस्ट्री होगी, वाइंडिंग वायर इंडस्ट्री होगी, एनामल वाइंडिंग वायर हो गया, लॉट्स ऑफ प्लास्टिक मोल्डिंग हो गया, मतलब इवन पैकेजिंग। तो लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज हम जो इन हाउस कैप्टिव कंजम्पशन करते हैं, जिससे हमारी सप्लाई चेन एज वेल एज क्वालिटी एज वेल एज R&D पे कंट्रोल रहे, ताकि मार्केट कंपटीशन के हिसाब से हम, अगर हमारी टीम को कोई डिजाइन चेंज करना पड़ रहा है मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में कोई नई इनोवेशन आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसको हमारी टीम R&D टीम स्टडी करती है कि क्या मार्केट में नया चल रहा है, तो ट्राई करते हैं कि वो इनोवेशन
हमारी कॉस्ट में कितनी हमें कंट्रीब्यूट कर पाएगा, ये एक मेजर रीजन आ जाता है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट फिर भी जैसे शक्ति पंप है जो कि इंटीग्रेटेड है मॉड्यूल के अलावा, और आपके उसमें 17% का ग्रॉस मार्जिन डिफरेंस है, और दूसरी तरफ है जीके जिनके अभी Q2 के रिजल्ट नहीं आए, बट लास्ट Q1 के अगर देखें तो उनका ग्रॉस मार्जिन इज ऑलमोस्ट द सेम एज योर्स, व्हिच इज जस्ट अ जीपीसी प्लेयर। सर मेरा ग्रॉस मार्जिन और जीके का नहीं सर, ग्रॉस मार्जिन जीके और हमारा सेम कैसे हो सकता है? अब उनके डेटा में तो लास्ट क्वार्टर का 34% ग्रॉस मार्जिन दिखा रहा है, तो I don't think we can comment on the gross margin of the competitor, but definitely if you compare us with Shakti, then we are also more integrated, because at present we are already making modules, and obviously we have very deep backward integration. Probably we'll invite you to come to the plant to see the level of backward integration. GK, I don't think we can comment how the gross margin is high. I think you need to ask them. Yes. We would love I think we'll definitely have the analysts come to your plant to understand better. मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो Q2 में जो 23,000 सोलर पंप आपने किए हैं, उसमें से ये मागल तलैया का कितना है और बाकी स्टेट्स का कुछ बाइफर्केशन अगर आप दे सकते हैं? ओके, एक मिनट, जस्ट एक सेकंड होल्ड कीजिए पुनीत जी। करीब 9,200 टन का, और बाकी स्टेट वाइज नहीं ज्यादा होगा मागल तला 23,000 में से आउट ऑफ 23,000 अराउंड मागल तेला में हम लेके चलते हैं, जो तकरीबन क्वांटिटी है 11,000 से 12,000 की मागल तेला में क्वांटिटी है। बाकी रेस्ट हमारी अलग अलग स्टेट्स में है। हेलो, हाँ जी, अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, तो एक आपने जो इसमें बताया था कि क्योंकि जो ये स्टेट लेवल पॉलिसीज हैं उसमें जो छोटे मोटे जो नए ईपीसी प्लेयर आ जाते हैं बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। एज फार एज आई रिमेम्बर, जो कुसुम 1 में था, जो शुरू में ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, बाद में कुसुम 1 में उन्होंने एम्पैनलमेंट के लिए स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स कर दी थी, जिससे ये छोटे ईपीसी प्लेयर्स नहीं आ पा रहे थे। सो ये डिफरेंस अभी भी है स्टेट लेवल और जो कुसुम 2 आएगा उसमें ये डिफरेंस रहेगा, ताकि कुसुम 2 में ये छोटे ईपीसी प्लेयर्स आके प्राइस डिस्टॉर्शन ना करते हैं। देखिए पुनीत जी, क्या था इसमें कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्टेट गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव चलना चाह रही थी और चली भी हैं। उनका पर्पज, प्राइमरीली पर्पज ये था कि वो जो क्वांटिटी टेंडर्स निकाले वो ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट हो। तो इन्होंने टेंडर्स की कंडीशंस में, एक्सपीरियंस में, फाइनेंशियल क्रेडेंशियल में बिडर को बहुत ज्यादा कंफर्ट दिया, जिससे कि बहुत लोग इनिशियली अट्रैक्ट हुए। स्पेशली अगर हम एसएमई को देखते हैं या उसको देखते हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत रिलीफ दिए। तो ये एक वजह थी कि गवर्नमेंट चाह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आए, और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेंट आएंगे तो हमारा एग्जीक्यूशन और ज्यादा बड़े लेवल पे होगा और हमारे फार्मर्स ज्यादा बेनिफिट होंगे। तो दैट वाज द प्राइमरी रीजन। अच्छा, तो ये जैसे मागल तलैया है, उसके अलावा आई थिंक एमपी ने चीफ मिनिस्टर जी ने अभी अनाउंस किया था कि 90% सब्सिडी का वो कुछ लॉन्च कर रहे हैं। उसके अलावा ये दोनों स्टेट के अलावा और कौन से स्टेट्स हैं जो स्टेट लेवल पे काफी एग्रेसिवली कुछ लेके आने वाले हैं? कौन सा? देखिए, हरियाणा का भी पीछे टेंडर आया था, तो वो उसका सारा प्रोसेस फिनिश हो चुका है। वो टेंडर बिड हो गया, एलोकेट हो गया। एलओआईज अभी तक उन्होंने नहीं दी है ड्यू टू सम इंटरनल रीजन, बट वो भी स्टेट का टेंडर था। मागल तेला तो है ही। अभी एमपी का भी स्टेट ही टेंडर है, क्योंकि पीएम कुसुम का तो कोई टेंडर नहीं है अभी। जब तक पीएम कुसुम की नई स्कीम नहीं आएगी तब तक टेंडर सेंट्रलाइज नहीं आ सकता। सो अभी जितने भी टेंडर्स आ रहे हैं, हम अगर कर्नाटक की बात कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की बात करें, गोवा का टेंडर आया अभी रिसेंटली, तो वो सारे स्टेट टेंडर्स आ रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you. We'll be able to take one last question. We take the last question from Raman KV from Sequent Investments. Please go ahead. हेलो सर, कैन यू हियर मी? या हाँ जी रमन जी, बिल्कुल सुनता हूँ। हाँ सर, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है अभी। सर, मेरे को सोलर और नॉन सोलर पंप्स में व्हाट इज द रियलाइजेशन डिफरेंस
एंड इन दोनों में किसका मार्जिन बेटर है? देखिए डेफिनेटली आज के दिन मैं ये बोलूंगा तो जो सोलर का कंप्लीट सेट हम सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट को, तो डेफिनेटली हमारी रियलाइजेशन उसमें बेटर है। और डेफिनेटली हमने बहुत सालों से, पिछले कुछ सालों से सोलर पे बहुत काम किया है और सोलर के बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम किया है, सोलर की टेक्नोलॉजी पे काम किया है। तो हमारे ओसवाल के पंप के मार्जिन आज के दिन सोलर पंप में कंपैरेटिवली नॉन सोलर पंप से ज्यादा है। तो बेसिकली तो फिर आपका मार्जिन भी सोलर पंप्स में ज्यादा होगा? डेफिनेटली। और आप सर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड सोलर पंप में है कि नॉन सोलर पंप्स में भी? नहीं, दोनों में है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमारा सोलर पंप में भी है और नॉन सोलर पंप में भी। और जो टोटल रेवेन्यू आता है आपका फॉर एग्जांपल FY25 में, उसमें से सोलर पंप्स में से कितना आया रेवेन्यू? मतलब देखिए FY25 में अगर हम देखते हैं 70-75% के करीब हमारा सोलर पंप का रेवेन्यू है और 20-25% हमारा नॉन सोलर पंप का रेवेन्यू है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू रमन जी, थैंक यू। Thank you very much. We'll have to take that as the last question. I would now like to hand the conference back to the management team for closing comments. Thank you very much, all of you. Thanks a lot for taking out time in the evening on approaching the weekend. Really appreciate for the encouraging participation, and have a great weekend, everybody. Thank you. Thank you. Good day. Thank you very much. With that, we conclude today's conference. Thank you for joining us, ladies and gentlemen. You may now disconnect your lines. Yeah, thank you.